Respected physical education teacher and dear students, myself Praveen Kumar Mishra, PGT physical education teacher, express thanks to give me the valuable suggestion in my previous videos. Now the today's session is related to children and women in sports. The overview of my session is women participation in sports, that is physical, psychological and social benefits. Second is spatial consideration, Mandrake and menstruation dysfunctions. And after that, female athlete traits, osteoporosis, amenorrhea and eating disorders. We will discuss one by one. Now the first part is women participation in sports, that is physical, psychological and social benefits. International Olympic Committee encourage not only the men for participation in Olympics but the women also. It also encouraged the National Olympic Committees and international federations to conduct in the various seminars for the female administrations, coaches and different technical officials and the difference related to games and sports journalists. It also, the IOC recommends that the women's participation in next Olympic is 49%. The next Olympics come in Paris. Now the participation first is Karnamma Malleshwari, won that bronze medals in Olympics 2022 in the weightliftings. After that in Mary Kom 2012 won that medals in boxing. Now London Olympics, Saina Nehwal won that medals in 2012. Now after that Rio Olympics, Sakshi Malik and PV Sindhu won that medals, silver medals in badmintons and wrestlings. And many more athletes are there, that is PT Usha, Anju Bobby George, famous athletes in international athletics competitions. After that Mirabai Chanu is also there, Indian weightlifters that won in medals in Commonwealth Games in 2022. And many athletes are there, many women participations are there, those who won in different medals in Olympics, Asian Games, Commonwealth Games and many international tournaments. They can overviews of sports in international parameters. Now what are the benefits for women participations? We will discuss physical, psychological and social benefits are there. First, the physical benefits. क्या physical benefits है? Lifestyle related disease से overcome होते हैं, and that lifestyle related diseases are diabetes, hypertension, high blood pressures, obesity and many more are there if you are participated in different type of activities. It reduces the many lifestyle related diseases are there. Secondly, bone densities are there. Bone density, that is the osteoporosis are there. Rather than male, female it comes as earliest because the bone density is lesser amount rather than male are there. Next is tone that muscles. If your participation in different, if you are take part in different type of activities related to the physical activities, they can develop their different type of muscles as well as tone their different type of muscles are there. After that, cardiovascular systems. If you are going for any type of aerobic form of activities, if you are taking that intake of oxygen in prolonged period of time, that impacts on the heart and the different type of vascular systems are there. If you are going the prolonged period of time activities are there, now the chances is different type of heart related tensions, different type of heart related diseases, maybe the chances are reduces. The number of capillaries may be enhances. Different type of regular exercises, it can enhances the different type of cardiovascular systems. Next is obesity, BMI index को control करते हैं. Regular exercises enhance the shape and size of your body. It may be the chances कि आपकी body को stay fit रखने की कोशिश होती है. Now after that, psychological benefits. There are many psychological benefits are there if you are participation in different type of activities, especially the women's are there. Stress management को control करता है because the women's release the maximum type of hormones, यानी maximum hormones को release करती हैं, इसलिए जो टेंशन की पार्ट होती है, स्ट्रेस का पार्ट होता है, रादर देन मैन वुमेन्स में ज़्यादा होता है, इसलिए स्ट्रेस को लेवल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि योगा टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ है. कंट्रोल देयर इमोशंस. बेसिकली इमोशंस जो होता है वो मेल में ज़्यादा कंट्रोलेबल होता है रादर देन गर्ल्स में. इफ़ यू आर गोइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, मैनेजेबल दैट मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस फॉर्म में रख सकते हैं. कॉन्फिडेंस लेवल एक बेसिक पैरामीटर्स होता है जहाँ पर हम वुमेन पार्टिसिपेशंस को एनहेंस करते हैं. इफ़ यू आर विनिंग दैट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशंस, इफ़ यू आर पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ अचीवमेंट्स के कारण कॉन्फिडेंस लेवल्स को इनहेंस करते हैं.
नेक्स्ट इज सेल्फ एस्टीम है, वुमेन्स के सेल्फ एस्टीम हायर करने के लिए पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करना चाहिए, बूस्ट ऑफ देयर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करना चाहिए, जिससे कि सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लेवल्स को इन्हेंस करते हैं। नेक्स्ट इज लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ बेसिकली इनकलकुलेट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स को, जिससे कि किसी भी वुमेन्स को डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करने की इम्प्रोवाइज होता है। नेक्स्ट इज सोशल बेनिफिट्स। अकॉर्डिंग टू सोशल बेनिफिट्स बेसिकली वुमेन्स को मोर एम्फेसाइज करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हमें करना चाहिए, इंक्रीज द इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, यानी बिटवीन द प्लेयर्स या डिफरेंट टाइप ऑफ टीम मेंबर्स के थ्रू कोऑर्डिनेशंस को डेवलप कर सकते हैं, वर्किंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स को डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि कोऑर्डिनेशन इनहेंस होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं, कम्युनिकेशन एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स है, जहाँ पर अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा यानी पॉजिटिव इन्वायरमेंट्स डेवलप होंगे। वुमेन पार्टिसिपेशन एक मोरल वैल्यूज़ यानी एक्सप्रेशन को भी डेवलप करते हैं। इंटर रिलेशनशिप्स, वुमेन पार्टिसिपेशन बेसिकली रिलेशनशिप या कि आप बोल सकते हैं रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स या रिस्पेक्ट फॉर फील्ड्स या आउट फील्ड्स को भी जनरेशंस करते हैं या इन्हेंस करते हैं। आफ्टर दैट कोऑपरेशंस होता है, कोऑपरेशंस एक बेसिक पैरामीटर्स होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो नॉन स्पोर्ट्स पैरामीटर्स हो, या ट्रेनिंग सेशंस हो गया या प्रैक्टिस सेशंस हो गया, या आप बोल सकते हैं ऑन फील्ड या आउट फील्ड्स में भी कोऑपरेशन रिक्वायर्ड्स होते हैं। कोऑपरेशंस रिलेटेड टू देयर वर्क्स, कोऑपरेशन रिलेटेड टू देयर डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोनी और पीस के लिए भी डेवलपमेंट किया जाता है। Now the second part is spatial consideration and the first part is मेनरेक। मेनरेक क्या होता है? मेनरेक बेसिकली फीमेल एथलीट्स में बेसिकली एक मेंस्ट्रुएशन बायोलॉजिकल चेंजेस ऑफ योर बॉडीज होती हैं, एंड बेसिकली फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण वहाँ पर जो अर्ली स्टेजेस में चाइल्ड्स होते हैं या फीमेल गर्ल्स होती हैं या गर्ल्स की एक एटीट्यूड्स, गर्ल्स में जो फिजिकल चेंजेस होता है एंड फिजिकल सेक्सुअल मैच्योरिटीज़ को जनरेशंस होता है। बेसिकली मेनरेक एक फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पार्ट होता है जहाँ पर एक सेक्सुअल मैच्योरिटीज़ फॉर गर्ल्स में डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। मेनरेक एक बेसिकली मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स बोला जाता है जहाँ पर ब्लडिंग्स प्रोसेस होता है वुमेन में, जहाँ पर एक डिस्चार्जेस थ्रू वेजिना ब्लड्स में होता है एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम देयर यूरेटस के लिए आता है, और बेसिकली डेवलपमेंट्स होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम्स या एक्सपेक्ट देयर प्रेगनेंसी टाइम्स से पहले भी होता है, एंड दिस डिस्चार्ज प्रोसेस एटलीस्ट बिटवीन द 3 to 5 days कंटिन्यूस रहता है। नॉट सेकेंड स्पेशल कंसिडरेशन में आता है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन आता है। डिसफंक्शंस मींस कि जहाँ पर एबनॉर्मल कंडीशंस होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स बेसिकली जो नॉर्मल रेंज होता है वो 21 से लेके 35 डेज में आता है, और इट मे बी द चांसेस डाई फंक्शन में क्या होगा 21 डे से पहले होगा या 35 डेज के बाद होता है। नॉट इट्स कम एज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अराइजेस होते हैं। नॉ मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन के डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम्स होता है जो कि अनप्लीजेंट से अनकंफर्टेबल सिम्टम्स होते हैं जो कि एक पीरियड टाइम्स में होता है, एंड दैट इज प्रोसेस इंक्लूड्स एट्स डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिटेशंस होते हैं, हेडेक होता है, समटाइम फेंटिंग होते हैं, वर्टिगो प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्फेक्शंस आते हैं, लास्ट बिटवीन द फ्यू आवर्स या फ्यू डेज में होता है। नेक्स्ट इज एमीरोहा होता है जहाँ पर सिर्फ मिस पीरियड्स होते हैं और एब्सेंस ऑफ नॉर्मल मंथली साइकिल्स होते हैं, और ये दो टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी एमीरोहा होता है ना। फर्स्ट प्राइमरी एमीरोहा वहाँ पर वो होता है जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज नॉट बीइंग इन प्यूबरिटी स्टेज, मीन्स अर्ली स्टेज में नहीं होता है ना। सेकेंड एमीरोहा वो होता है जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन मिस्ड होता है बिटवीन द 3 month और इससे ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम में होता है। नॉट नेक्स्ट इज डाइसमेनोरेहा होता है जो कि एक सीवियर पेन और फ्रीक्वेंटली मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स आते हैं ड्यूरिंग दैट डिफरेंट टाइप ऑफ मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन में ना। मेनीरोहा जो होता है वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हैवी ब्लड्स होते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ कंटिन्यूशन ब्लडिंग्स होता है। पॉलीमेनेरिया एक टाइप का डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में 21 डेज में होता है ब्लडिंग्स में। ओलिगोमेनेरिया एक वन टाइप ऑफ इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होता है, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द इंटरवल जो ग्रेटर पीरियड ऑफ टाइम जो 35 डेज में होता है उसके बाद होता है। मेट्रोरेजिया इट इज़ रिफर्ड फ्रॉम मिस या डिलेज पीरियड ऑफ टाइम होता है। एबनॉर्मल ब्लडिंग पैटर्न्स होते हैं। पोस्ट मेनोफोशियल्स एक पार्ट ब्लडिंग्स होते हैं जो कि 1 year या आप बोल सकते हैं आफ्टर दैट वुमेन स्टॉप एंड देयर हैवी ब्लडिंग साइकिल्स होता है जहाँ पर से ब्लडिंग साइकिल्स आके स्टॉप हो जाता है आफ्टर 45 years के बाद। ना देयर आर द 3 different टाइप ऑफ फीमेल एथलीट ट्रेट्स होता है।
लो बोन मिनरल डेंसिटी दैट इज कॉल्ड एज BMD होता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन, दे आर द 3 बेसिक फीमेल एथलीट ट्रेट्स एक वुमेन्स में होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं. नाउ विल डिस्कस वन बाय वन. नाउ फर्स्ट इज ईटिंग डिसऑर्डर्स. ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होता है? डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पर ईटिंग के रेंज बेसिकली हार्मफुल होता है और स्पेशली रादर देन मेल, फीमेल में ये ज़्यादा टेंडेंसी में होता है. हार्मफुल कंडीशंस होती है, इनफेक्टिव ईटिंग बिहेवियर प्रोसेस को बोला जाता है बिकॉज ऑफ वेट रिडक्शन या वेट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. नाउ नेक्स्ट, इसका 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड ब्लूमा नर्वोसा. एनोरेक्सिया नर्वोसा में वो होता है जहाँ पर हम फूड को हम कट ऑफ करते हैं, डाइटिंग करते हैं, वेट को रिड्यूस करने के लिए कंट्रोलेबल किया जाता है. आफ्टर दैट ब्लूमा नर्वोसा होता है जो कि एक पार्ट होता है, हम ओवर ईटिंग करते हैं और वहाँ पर वेट कंट्रोलिंग के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स को इनटेक करते हैं. वोमिटिंग्स होता है, टेकिंग लेक्सेटिव ड्रग्स होते हैं, वेट लॉस, डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स लेते हैं, ड्यूरेटिक्स लेते हैं, या उसके बेसिस पे हम वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन. वी आर ऑलरेडी डिस्कस अर्ली. मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी ऑफ क्रैम्प्स होते हैं जो कि एक फीमेल एथलीट्स में होता है. बोन मिनरलाइजेशंस डेंसिटीज बोल सकते हैं और समटाइम ट्रीटमेंट्स मंथ या ईयर बेसिस पे भी चलते हैं. बेसिकली डिसफंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए वेट ट्रेनिंग करना चाहिए जिससे कि हमें बोन की डेंसिटी को इंप्रूव करते हैं. और बेसिकली एडोलेसेंस मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी पीरियड्स ऑफ टाइम्स में होता है. स्टडीज शोज करती है कि मोर देन 15 एथलीट्स ऐसे 15% फीमेल एथलीट्स ऐसे हुए हैं जो ओलंपिक्स में मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन या एमिरोहा टाइम में पार्टिसिपेशन किया है. सम टाइम एथलीट्स स्केलेटल मसल्स में इम्पैक्ट करता है और बेसिकली मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन सेडेशन ऑफ लाइफ स्टाइल के कारण भी होने के चांसेस वुमेन में ज़्यादा होते हैं. आफ्टर दैट बोन मिनरल डेंसिटी क्या होती है? ऑस्टोफोरोसिस होता है. ऑस्टोफोरोसिस यानी बोन्स में जो फोरोसिस या आप बोल सकते हो मिनरल की डेंसिटी कम हो जाती है. इंक्रीज बोन फर्जाइल होता है, यानी बोन्स जो केमिकल्स कंपोजिशंस ऑफ फॉस्फोरस नाइट्रोजन्स होते हैं वो कम होने के चांसेस मैक्सिमम्स होते हैं. इसी कारण ये बोन BMD होता है. फ्रैक्चर्स होंगे, पेन्स होगा, डिफॉर्मिटीज़ होंगे, डिसेबिलिटीज़ होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं. लो मिनरल बोन डेंसिटी बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं आप अगर होता है तो इम्प्रॉपर डाइट के कारण होता है. लो लेवल ऑफ ऑस्ट्रोजन पोस्ट्रोजन्स के कारण से होता है ना. एमिरोहा के कारण भी चांसेस हैं कि लो मिनरल बोन डेंसिटी हो सकता है ना. हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेके, फूड कंजप्शन प्रॉपर लेके, डाइट प्लान्स बना के, बॉडी में प्रॉपरली फंक्शंस हमारी कौन सा फूड हो रहा है उसके कारण लेके, रिप्लेसमेंट ऑफ एनर्जी आउटपुट्स एंड टेकिंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान्स बना के और बोन्स को इन्हेंस करके या हेल्थ को डेवलप करके या हेल्थी स्टाइल्स को चेंज अप करके भी हम कर सकते हैं. Now references which we are taken that curriculum basically 24-25 से, and I am using that same health manuals जो कि CBSE ने प्रोड्यूस किया है. थैंक यू.